سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ معزز علماء ملت اسلامیہ و سامعین جلسہ نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقام، والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال وعلى آلہ وصحبہ المزارعین له فی الصفات والاعمال، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے جناب محمد نعیم رضا صاحب کی محبت اور ان کے تمام جوان ساتھیوں کی محبت، ان کے تمام جوان ساتھیوں کی محبت، حیدرآباد کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان لگ بھگ 5 سال کے بعد حیدرآباد کی سرزمین پر یہ ناچیز حاضر ہوا۔ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ہمارے بچوں نے فرمائش کی کہ حضرت آپ کو علم غیب مصطفیٰ پر خطاب کرنا۔ میں نے بچوں کی خواہش کا احترام کیا اور احترام کرنے کے بعد میں نے اپنا موضوع علم غیب مصطفیٰ رکھا۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ غیب کس کو کہتے ہیں، دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ غیب کی خبر حضور کو ہے یا نہیں ہے، تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو حضور کی توہین کرے، حضور کی کمی نکالے، کیا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم سنی ہیں، ہم کو بریلوی کیوں کہا جاتا ہے۔ پانچویں چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ سنی کس کو کہتے ہیں۔ صرف 5 باتیں میری تقریر میں سماعت کرنی ہے۔ مائک والی سے گزارش ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک رکھیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ بالکل آپ ٹھیک ٹھاک بیٹھو۔
मुकर्रिर तकरीर खुद नहीं बोलता, तकरीर बुलवाई जाती है। सहरी के वक्त से मुझको सोने का और आराम करने का मौका नहीं मिला। रोजा रखकर सिर्फ बैठ कर ही मैंने सफर किया। बदन में चक्कर आ रहा, इसके बावजूद भी मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप दुआ फरमाए कि मौलाना रब्बानी ने जितनी चीजों का वादा किया है, बिल्कुल हदीस और कुरान की रोशनी में वो सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदअकीदों की नानी मर जाएंगी, एक भी हदीस का जवाब नहीं है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिलो दिमाग में बसाने की कोशिश करें। शोर शराबा न करें, अदब के साथ, अदब की महफिल है, तशरीफ रखें और मेरी तकरीर को अपने दिलो दिमाग में बसाने की कोशिश करें। यह हैदराबाद की सरजमीन है, यहां की मादरी जबान उर्दू है, यहां का पैदा होने वाला बच्चा भी उर्दू जबान बहुत शानदार बोलता है, हमसे अच्छी उर्दू जानता है। इसलिए आपके ज़हन और फिक्र का ख्याल करते हुए हमें खिताब करना है। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरा व खियार मुस्तफा जाने रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शहीद बज़्म जन्नत पूरे बाबू रिसालत अर्श की ज़िबो ज़ीनत फर्श की ज़िबो नुज़ात, जिनकी शान ना आते ना कर कौसर शाफ़े मैशर साक़ी कौसर हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बाबा से बुलंद झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश कर पढ़े। अल्लाह बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है ना। शेर मुलाज़ा फरमाए, शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए कि तेरी निगाह से जर्रे यू आफताब बने, जवाब जिनका नहीं ऐसे लाजवाब बने, और सुकूत ऐसा जहां लाखों राज मुज़मर है, सुकूत ऐसा जहां लाखों राज मुज़मर है, कलाम ऐसा कि हर लफ्ज एक किताब बने, कलाम ऐसा कि हर लफ्ज एक किताब बने। और यह भी शेर सुनिए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हैदराबाद के बाशुर मुसलमानों, अभी मैंने कुरान करीम की बड़ी मशहूर आयत तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया, आपको भी मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, वो अल्लमा कमा लम तकुन तालम, ऐ महबूब आप जो भी गैब की बातें, अहकाम की बातें नहीं जानते थे, आपके रब ने आपको सब सिखा दिया, आपके रब ने आपको सब बता दिया। अब कितना बताया किसी को पता नहीं, अब कितना सिखाया किसी को खबर नहीं। या तो सिखाने वाला जाने कि उन्होंने अपने महबूब को कितना सिखाया, या तो सीखने वाले रसूल जाने कि उन्होंने अपने रब से कितना सीखा। जब सिखाने वाला अल्लाह है, सीखने वाले रसूल है, जब किसी को खबर नहीं कि कितना सिखाया, रसूल ने कितना सीखा, जब किसी तीसरे को खबर नहीं, तो फिर रसूल के इल्म को नापना हिमाकत नहीं है तो क्या है, रसूल के इल्म पर नुक्ताचीनी करना कुफ्र इर्तिदाद नहीं है तो क्या है, रसूल पाक के इल्म गैब की तौहीन करना कुफ्र नहीं है तो क्या है। ऐ सुन्नियों कान खोलकर सुन लो, आज ये जितने गुमराह फिरके हैं हम पर इल्जाम लगाते हैं कि सुन्नी लोग रसूल के इल्म को खुदा के इल्म के बराबर मानते हैं। हजरात, जो बराबर माने काफिर, जो बराबर माने मुशरिक,
ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ رسول کا علم خدا کے علم کے برابر ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا علم اور ہے، رسول کا علم اور ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم غیر محدود ہے، رسول کا علم محدود ہے. صاف لفظوں میں سمجھو، اللہ کو کسی نے نہیں سکھایا ہے مگر میرے رسول کو اللہ نے سکھایا ہے. اتنا بڑا فرق ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ہم پر الزام لگائے تو اس سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ حضرات میری طرف دیکھو، غیب کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھو. غیب کہتے ہیں جو چیز آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو چیز آپ کے عقل و حس سے پوشیدہ ہے، اس کو غیب کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی تقدیر آپ سے پوشیدہ ہے، اس کا نام ہے غیب. آپ جنتی ہیں کہ جہنمی، اس کا نام ہے غیب. قبر میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کا نام ہے غیب. بارش کب ہوگی، اس کا نام ہے غیب. قیامت کب آئے گی، اس کا نام ہے غیب. ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، اس کا نام ہے غیب. کون کہاں مرے گا، اس کا نام ہے غیب. کون کل زندہ رہے گا، اس کا نام ہے غیب. قبر میں کیا ہو رہا ہے، اس کا نام ہے غیب. زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کا نام ہے غیب. آسمان میں کیا ہو رہا ہے، اس کا نام ہے غیب. ایک مہینہ آنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا نام ہے غیب. 1400 سال پہلے کیا ہوا، اس کا نام ہے غیب. اب سوال یہ پیدا ہوا، ان تمام چیزوں کی خبر حضور کو ہے یا نہیں؟ وہابی کہتا ہے حضور کو نہیں ہے، دیوبندی کہتا ہے حضور کو نہیں ہے، جتنے بھی اور بھی فرقے کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو نہیں ہے. لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے. ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. میرا رسول وہ رسول ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے. 5 منٹ انتظار کیجیے، ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ طبیعت مچل جائے گی، لیکن میری تقریر میں شور شرابہ نہیں ہو. نعرہ بھی لگایا کرو، سبحان اللہ بھی کہا کرو. میری طرف دیکھو، آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ مولانا لوگوں کے مرغا مچھلی کا جھگڑا چل رہا ہے. دنیا سمجھ رہی ہے مولانا لوگوں کے پلاؤ چلاؤ بریانی کا جھگڑا چل رہا ہے. دنیا سمجھ رہی ہے مولانا لوگوں کے داڑھی ٹوپی کا جھگڑا چل رہا ہے. دنیا سمجھ رہی ہے یہ مولانا لوگوں کی لڑائی چل رہی ہے. مگر کان کھول کر سن لو، یہ مولانا کی لڑائی نہیں ہے بلکہ ایمان اور عقیدہ کی لڑائی ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ مولانا ربانی سب کے خلاف بولتا ہے، مگر کان کھول کر سن لو، مولانا ربانی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے. لیکن جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کا وفادار کون ہے، نبی کا عاشق اور مستانہ کون ہے، نبی کا چاہنے والا کون ہے. اگر نبی سے محبت کرنے والا حبش کا بلال ہو تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور نبی کا گستاخ مکے میں رہنے والا ابو جہل ہو تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مارتے ہیں. قرآن کہتا ہے رسول آپ جو بھی غیب کی باتیں احکام کی باتیں نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا، آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا. اب کتنا بتایا؟ حدیث سنیے پھر اندازہ لگائیے. اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ.
माशाअल्लाह गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल कद्र सफा नंबर 36 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी यदिही किताबान फक़ाल तदरूना मा हाज़ानी किताबान फक़ुलना ला या रसूल अल्लाह इल्ला अन तुख़बिरना फक़ाल लिल्लज़ी फी यदिही अल-युमना हाज़ा किताबुन मिन रब्बिल आलमीन फीहि अस्माउ अहलिल जन्नह व अस्माउ आबाइहिम व अस्माउ क़बाइलिहिम सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम फला युज़ादु फीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा सुम्मा क़ाल लिल्लज़ी फी शिमाली हाज़ा किताबुन मिन रब्बिल आलमीन फीहि अस्माउ अहलिन नार व अस्माउ आबाइहिम व अस्माउ क़बाइलिहिम सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम फला युज़ादु फीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि एक दफा मेरे सरकार सहाबा के मजमे में अपने दोनों हाथ में दो किताब लिए हुए तशरीफ लाए। कई किताब, जोर से बोलो, अपने दोनों हाथ में दो किताब लिए हुए तशरीफ लाए। एक किताब दाएं हाथ में, एक किताब बाएं हाथ में। सरकार पूछते हैं अतदरूना मा हाज़ानी किताबान, ओ सहाबा क्या तुम्हें मालूम है ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सहाबा कहते हैं ला या रसूल अल्लाह इल्ला अन तुख़बिरना, ऐ मेरे सरकार हमें कुछ भी मालूम नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं, हमें कुछ भी जानकारी नहीं। ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना के आपने बता दिया है। सिर्फ 1 मिनट का वक्त दिया क्योंकि अगले वाला नमाज के लिए माइक रोका गया था, अगले उसका कलेक्शन उसमें भी है। 2 मिनट खामोश बैठिए, इलेक्ट्रीशियन साहब माइक चेंज कर रहे हैं, इंशाल्लाह सबका आवाज पहुंचे। न जाने क्या बात है मेरे दरमियान, जब मैं तकरीर हो करता हूं तो माइक ही बिगड़ने लगता है। बहरहाल मेरी तरफ देखो, माइक बिगड़े तो बिगड़े मगर मुसलमान ना बिगड़े। मेरी तरफ देखो, सरकार फरमाते बैठ जाइए, आप चुपचाप बैठिए। मेरे सरकार फरमाते हैं ओ सहाबा ये कौन सी किताब है जानते हो? सहाबा कहते हैं सरकार हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं, हमें जानकारी नहीं, ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना के आपने बता दिया है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, इसके अलावा हमें मालूम नहीं। सरकार ये कौन सी किताब है, कैसी किताब है, क्या लिखा हुआ है, आप जितना बताते हैं हम उतना जानते हैं, इसके अलावा हमें कुछ खबर नहीं। तो सुनिए, पैगंबर ने इरशाद फरमाया ओ सहाबा, ओ सहाबा, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ओ सहाबा, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ये दोनों किताब अल्लाह की किताब है, ये दोनों किताब अल्लाह की किताब है। अभी अभी जिब्रील लेकर मेरे पास आए। जानते हो इन दोनों किताब में क्या लिखा हुआ है? जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, इन दोनों किताब में उनका नाम मौजूद है, उनके बाप का नाम
नाम मौजूद है, उनके दादा का नाम मौजूद है, वो किस बिरादरी के होंगे, बिरादरी का नाम मौजूद है। ओ सहाबा, जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, सबका नाम, सबके बाप दादा का नाम अल्लाह ने हमें बता दिया है। अगर बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और बीच से एक आदमी खड़े होकर जोर से नारा लगाओ। बैठो, गौर से सुनो, माइक डिस्टर्ब ना करे तो मौलाना हैदराबाद वालों के लिए कलेजा गुर्दा सब पेश कर देंगे, लेकिन माइक डिस्टर्ब ना करे तब। आप हदीस सुन चुके? अरे बोलो, हदीस सुन लिए? कितने लोग सुन चुके? हाथ उठाकर बोलो। अब आपको फैसला करना है कि हम हदीस को माने कि खबीस को माने। हदीस कह रही है इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हैदराबाद का कोई ऐसा नौजवान मजमे में खड़ा होकर अभी इसी वक्त इस मुशीराबाद मोहल्ले के किसी आदमी के 100 आदमी का नाम लाइन से बाप दादा के साथ बयान करे तो मैं देखता हूं कोई बयान नहीं कर सकता। 100 आदमी तो छोड़ो, अगर किसी को कह दिया जाए कि 50 आदमी का नाम उनके बाप दादा के नाम के साथ मेरे सामने बयान करो तो हिम्मत आप हार जाओगे। अब आप बताओ, आप 100 आदमी का नाम नहीं जानते, 500 आदमी का नाम नहीं जानते, 300 आदमी का नाम नहीं जानते, 1000 आदमी का नाम नहीं जानते, लेकिन मेरे मुस्तफा का इल्मे गैब देखो, अल्लाह की अता देखो। मुस्तफा फरमाते हैं जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, सबका नाम, सबके बाप दादा का नाम अल्लाह ने हमें बता दिया है। अब आप फैसला करो कि पैगंबर को क्या मालूम है और क्या मालूम नहीं है। वो झूठे हैं, मक्कार है, जो पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, पैगंबर की तौहीन करते हैं। ऐ मुसलमान, जो पैगंबर के खिलाफ बोलता हो, समझ लो वो सुन्नी का बेटा नहीं है, वो यहूदी का बेटा है, जो यहूदी के तरीके पर चल रहा है, यहूदी के पैसे की लालच में, दौलत और पैसे की लालच में वो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोल रहा है। मुसलमान खिलाफ नहीं बोलता, अपने नबी की तारीफ किया करता है, अपने नबी का खुतबा पढ़ा करता है, अपने नबी की अजमत और शान बयान किया करता है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, सुनिए, मौलाना रब्बानी का नाम सुनकर इनकी पूरी जमात को पसीना आ जाता है। याद रखिए, ये खबीस जो इटावा का रहने वाला है 2 जुमला मेरे सामने नहीं बोल सकता। याद रखिए, अभी तो आपने एक हदीस सुन ली है, अब आप दूसरी सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा शानदार मजमा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। ऐ हैदराबाद के मुसलमान, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो, तशरीफ रखो, हदीस पाक का हवाला नोट करो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल कद्र सफा नंबर 36 की हदीस, सफा नंबर तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। मैं जो भूलने लगा, ये मौलाना इधर उधर करेंगे तो मैं भूलूंगा, इसलिए इधर उधर मत करो, जैसे बैठे हो बैठे रहो, गौर से सुनो, हवाला फिर से नोट करो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। नबी सय्यदुल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन सलातल अस्र बिनहार सुम्मा क़ाम खतीबन फलम यदा शयअन यकूनु इला क़यामिस साअह इल्ला अख़बरना बिही हफ़िज़हु मन हफ़िज़हु वन नसियहु मन नसियहु।
इजाजत है? इधर उधर नहीं, गौर से सुनिए। आप लोग हिम्मत बढ़ाएंगे तो बोलूंगा। ये उलमा हमारी आंखों के तारे हैं। मेरी तरफ देखो, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि एक दफा मेरे सरकार असर की नमाज, किसकी नमाज, जोर से बोल दो, असर की नमाज अव्वले वक्त में पढ़ा दिए। कब पढ़ाए? जोर से बोलो, अव्वले वक्त। अव्वले वक्त का मतलब यह हुआ कि जैसे असर का वक्त शुरू हुआ, इंतजार नहीं किया, बिलाल आजान दिए, सरकार मुसल्ला पे खड़े हो गए, नमाज अदा किया। नमाज अदा करने के बाद आप मिंबरे नबूवत पे तशरीफ ले गए और वाज फरमाने लगे, तकरीर फरमाने लगे, खिताब फरमाने लगे। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि असर से मगरिब तक के बीच में दुनिया में जो भी होने वाला था, कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था, मेरे सरकार ने सबको डिटेल बयान किया, सबको साफ साफ बयान किया, सबको क्लियर तौर पे बयान किया। ये तो एक हदीस है, मगर दूसरी हदीस इस तरह है, गौर से सुनो, कि एक दिन मेरे सरकार फजर की नमाज से फारिग हुए, जोहर तक तकरीर किया, जोहर से फारिग हुए, असर तक तकरीर किया, असर से फारिग हुए, मगरिब तक तकरीर किया, मगरिब से फारिग हुए, ऐशा तक तकरीर फरमाई। आपने 5 वक्त की नमाज में 4 मर्तबा लंबी तकरीर किया और लंबी तकरीर करके कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था सबको साफ साफ बयान किया। जिनका ज़हन तेज था उसने याद कर लिया, जिनका कमजोर था उसने भुला दिया। दूसरी हदीस सुन चुके? किसी से ये कह दो हैदराबाद में कि तुम 15 दिन आने वाले वक्त की खबर दो कि क्या होने वाला है, जल्दी कोई बताएगा? साइंसदान बताते हैं तो कंफर्म नहीं, कहते हैं संभावना। क्या कहते? आने की उम्मीद है, ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन देखो मेरे पैगंबर को देखो, 1400 बरस पहले दुनिया में जो कुछ होने वाला था सबको साफ साफ बयान किया, सबको क्लियर बयान किया। जिनका ज़हन तेज था उसने महफूज कर लिया, जिनका कमजोर था उसने भुला दिया। अब आप फैसला कीजिए कि पैगंबर को क्या मालूम है, क्या नहीं मालूम है। मेरा काम हदीस सुनाना, फैसला आपका काम है करना। आजकल लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये नाक तक दाढ़ी रखने वाला ठीक है कि सीने तक दाढ़ी रखने वाला ठीक है। कौन ठीक है? सब तो कलमा पढ़ते हैं। हजरात तुमको फैसला करना पड़ेगा। बताओ शिया कलमा पढ़ता है कि नहीं, शिया नमाज पढ़ता है कि नहीं, शिया रोजा रखता है कि नहीं। तुमने उसका बाइकाट क्यों किया? उसकी बेटी बहुओं को अलग थलग क्यों किया? उससे रिश्ता नाता क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ा कि शिया कलमा जरूर पढ़ता है, नमाज जरूर पढ़ता है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को गाली देता है, उमर को गाली देता है। तो फैसला करो मुसलमान कि जो सहाबा को बुरा भला कहे उससे तुम अलग रहो और जो नबी के खिलाफ बोले उससे हाथ मिलाओ। ये कहां का इंसाफ है? ये पागलपनी है। हजरात अभी आपने 2 हदीस सुनी, अब तीसरी सुनिए, बड़ी शानदार हदीस, तबीयत मचल जाएगी। मगर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तबीयत भी खराब हो गई है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, और माइक भी खराब हो गया है इसलिए दिक्कत हो रही है। लेकिन आप कुछ मत करना, बिल्कुल चुपचाप बैठो। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा माइक है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की अता फरमाए। अब मेरी तरफ देखो, हदीस का हवाला नोट
करो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो मनाकिब उस्मान सफा नंबर 561-62 की हदीस सुनो। अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अला सबील मक्का व माहु अबू बकर व उमर व अना फतहर्रकल जबल हत्ता तसाक़तत हिजारतुन बिल हसीस फरकज़हु बिरिजली फक़ाल उस्कुन या सबीर फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। हजरत उस्मान गनी कहते, कौन कहते बोलिए हजरत लोग? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मक्के के एक पहाड़ के ऊपर हम लोग खड़े हैं, हुजूर भी तशरीफ फरमा है, अबू बकर भी तशरीफ फरमा है, उमर भी तशरीफ फरमा है। उस्मान कहते हैं मैं भी पहाड़ पर खड़ा हूं, हम लोग 4 लोग खड़े हैं, सरकार भी मौजूद है, अबू बकर भी मौजूद है, उमर भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूं। ये कौन कहते हैं जल्दी बोलो? हजरत उस्मान गनी। उस्मान गनी कहते हैं हम लोग मौजूद हैं, अचानक पहाड़ हिलने लगा, पहाड़ कांपने लगा, पहाड़ थरथराने लगा, पहाड़ हरकत करने लगा। इतना हिला कि अगल बगल में जो चट्टान पड़े हुए थे वो सब के सब जमीन पर आने लगे। उस्मान गनी कहते हैं जब पहाड़ बहुत हिलने लगा तो मेरे सरकार ने पहाड़ को पांवों से मारा। किससे मारा? जोर से बोलो। पांवों से मारा और इरशाद फरमाया उस्कुन या सबीर फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। सरकार ने पहाड़ को पांवों से मारा और इरशाद फरमाया ऐ पहाड़ क्यों कांप रहा है, क्यों थरथरा रहा है, क्यों लरस रहा है? तू तो बड़ा खुश नसीब है कि आज तेरी पीठ पर एक अल्लाह का नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है और 2 अल्लाह के शहीद मौजूद है। नारा लगाने से 3 फायदा। क्या फायदा? जोर से बोलो। एक फायदा ये कि सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा मुझको रेस्ट मिलेगा। नारा लगाते रहो, हौसला भी बेदार रहेगा और बोलने वाले को सांस भी लेने का मौका मिलेगा। इजाजत है ना? अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 3 गिनती करते जाओ और फैसला भी करते जाओ कि हम हदीस को माने कि खबीस को माने। मेरी तरफ देखो, ये बताओ कौन शहीद होगा, कौन शहीद नहीं होगा? पैगंबर ने फरमाया। अच्छा ये बताओ ये 2 शहीद कौन है? जल्दी बोलो। एक हजरत उमर और एक हजरत उस्मान। अच्छा ये बताओ अभी जिंदा है या शहीद हो चुके? जोर से बोलो। जिंदा है। शहीद कब हुए? जोर से बोलो। 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं। हजरत उमर अपने दौरे खिलाफत में शहीद हो रहे हैं, हजरत उस्मान अपने दौरे खिलाफत में शहीद हो रहे हैं। मगर ऐ सुन्नियों, अपने पैगंबर पे कुर्बान हो जाओ। 20 साल पहले मेरा पैगंबर बेजान पहाड़ से कह रहा है, ऐ पहाड़ तू बड़ा खुश नसीब है कि तेरी पीठ पर एक अल्लाह का नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है और 2 अल्लाह के शहीद मौजूद है। 3 हदीस सुन चुके, अब 4थी सुनिए और तबीयत को अपने माशाअल्लाह
मदीना तक पहुंचाइए, दिल को मदीना तक पहुंचाइए। चौथी हदीस सुनिए, अदब के साथ हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। अल्लाह हैदराबाद वालों को आबाद रखे। हैदराबाद, इधर मौलाना इलाहाबाद, इधर देखो अल्लाह ताला आपको भी आबाद रखे, मुझको भी आबाद रखे, और नबी की मोहब्बत में आपके दिल को भी शाद रखे, मेरे भी दिल को शाद रखे। अब हदीस सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिब सिद्दीक सफा नंबर 556 की हदीस सुनो। नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील फअख़ज़ बियदी फ़अरानी बाबल जन्नतिल लज़ी यदख़ुलु मिन्हु उम्मती फ़क़ाल अबू बकर या रसूलल्लाह वदित्तु अन्नी कुन्तु माका हत्ता अनज़ुर इलैहि फ़क़ाल अलैहि सलाम अम्मा फ़इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदख़ुलुल जन्नत मिन उम्मती। बड़ी शानदार हदीस है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, कौन कहते हैं जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा हदीस की रिवायत किनसे है, जल्दी बोलो, हाथ उठाकर बोलो किनसे है। अब हाथ गिरा लो, इधर देखो। अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन मेरे सरकार ने बहुत खुश होकर सहाबा से खिताब फरमाया। क्या किया? और खिताब के दौरान सहाबा से कहा, क्या कहा सुनिए, ओ सहाबा, ओ सहाबा, अभी अभी मेरी बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए, अभी अभी मेरी बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बाजू पकड़ा, मेरी कलाई को थामा और थाम कर कहां ले गए जानते हो? जन्नत के उस दरवाजे पर ले गए, जन्नत के उस दरवाजे पर ले गए जिस दरवाजे से मेरी उम्मत दाखिल होगी। सरकार फरमाते हैं जैसे मैंने, इधर देखो, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जैसे हुजूर ने जन्नत का नाम लिया, अबू बकर रोने लगे। क्या कहने लगे? रोने लगे। इतना रोए कि दाढ़ी के बाल भीगने लगे, आंसू टपकने लगे। सरकार पूछते हैं क्यों रो रहे हो, क्या बात है आंसू बहा रहे हो? तो जवाब सुनिए और ईमान में रोशनी पैदा कीजिए। अबू बकर जवाब देते हैं, सरकार या रसूल अल्लाह वदित्तु अन्नी कुन्तु माका हत्ता अनज़ुर इलैहि, मेरे सरकार मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि जैसे मैं दुनिया में हर वक्त आपका दीदार करता रहता हूं, अगर जन्नत में भी जाऊं तो आपका दीदार करता रहूं। आप लोग मिस कॉल वाला जो नारा लगाते हैं तो मैं घबरा जाता हूं। सुन्नी का नारा मिस कॉल वाला नहीं होना चाहिए, पूरा नारा बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, खाजा का दामन, बुजुर्गों का दामन, आला हजरत का दामन, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर। इधर देखो, आजकल लोग समझते हैं कि ईमान ज़कात फितरा खाने का नाम है। आजकल लोग समझते हैं कि सऊदिया की ज़कात लाओ और खाओ, इसी का नाम ईमान है। याद रखो, ईमान मुर्गा मछली खाने का नाम नहीं, ईमान अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत का नाम है। और मोहब्बत कहते हैं कि जहां रहो अपने नबी की, अपने खुदा की तारीफ करो, कभी उनके खिलाफ मत बोलो। दुनिया में उससे बड़ा पागल कोई नहीं है जो अल्लाह के खिलाफ बोले।
یا اس کے محبوب کے خلاف بولے. اگر حدیث و قرآن میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی غلطی سمجھو, اللہ رسول کا عیب مت نکالو, اللہ رسول کی کمی مت نکالو, ورنہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے. ابھی آپ نے کئی حدیث سنی, زور سے بولو. 4. اب 5ویں اتنی شاندار حدیث ہے کہ قسم خدا کی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حوالہ نوٹ کرو, حدیث پاک سنو. ماشاءاللہ ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 55 کی حدیث سنو. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اطت السماء وحق لها ان تطمع فيها موضع 4 اصابع الا وملك فاضل جبهته لله ساجدا فوالله لو تعلمون ما اعلم لزهدتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السوداء تجارون الى الله لوددت اني كنت شجرة توزد. زور سے بول دو سبحان اللہ. گھبرائے تو نہیں؟ میں تھکا ہوا ہوں, میں آپ کی محبت میں بول رہا ہوں, اللہ رسول کا کرم ہے جو میں بول رہا ہوں. میری طرف دیکھیے, میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلاموں. کیا کہا وہ؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, غور سے سنیے. سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلاموں. کیا کہا؟ زور سے بولو. اے میرے غلاموں بے شک میں وہ دیتا ہوں جو تم نہیں دیتے ہو. کیا کہا؟ زور سے بولو. بے شک میں وہ دیتا ہوں جو تم نہیں دیتے ہو, اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. سرکار فرماتے ہیں آسمان کا چرچرانا, آسمان سے آواز نکلنا تم لوگ روز نہیں سنتے ہو, میں سنا کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں 7 آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہو. تم لوگ نہیں دیکھتے ہو مگر میں زمین پر رہ کر یہ سارا منظر دیکھتا رہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں قسم خدا کی جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جان لیتے تو ہنستے کم روتے زیادہ, بال بچوں کو چھوڑ دیتے, بیوی سے ملنا بند کر دیتے, جنگل میں نکل جاتے, خوب روتے گراتے, اللہ سے فریاد کرتے اے میرے پروردگار کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. میری طرف دیکھو, پیغمبر فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. قسم خدا کی جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم لوگ جان لو تو ہنسو گے کم, رو گے زیادہ, جنگل میں بھاگ جاؤ گے, دنیا کو لات مار دو گے, بیوی سے ملنا بند کر دو گے, بال بچوں سے الگ ہو جاؤ گے, اللہ سے کہو گے اے اللہ کاش میں ایک درخت ہوتا کہ مجھ کو کاٹ دیا جاتا, جلا دیا جاتا, حساب نہیں لیا جاتا. اب آپ حدیث سن چکے, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہ بتاؤ کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہو یہاں سے مدینہ شریف زیادہ دور ہے کہ آسمان زیادہ دور ہے؟ جلدی بتاؤ. آسمان زیادہ دور ہے. مدینہ شریف کتنی دور ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5000 کلومیٹر, زیادہ سے زیادہ 6000 کلومیٹر. مگر آسمان کتنی دور ہے آپ کو معلوم ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تیز رفتار گھوڑا پوری رفتار کے ساتھ کنٹینیو 500 سال تک چلتا رہے تب پہلے آسمان تک پہنچے گا. اب تم خود فیصلہ کرو کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال میں کتنے کلومیٹر کا سفر طے کرے گا. کم سے کم
5 लाख तो तय करेगा। 5 लाख नहीं मानते 3 लाख, 3 लाख नहीं मानो 2 लाख, इतना तो मान लो कि जमीन से आसमान कितनी दूर है, जोर से बोलो 2 लाख किलोमीटर। तो तुम खुद फैसला करो और उन मर्दूदों से कहो जो पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं कि जिस पैगंबर में इतनी ताकत हो कि हर वक्त 2 लाख किलोमीटर की चीज को जमीन से देख रहा है, क्या वो पैगंबर मदीने से हम गुलामों को नहीं देख रहा है? हजरात, हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि मौत सबको आती है। जल्दी बोलो, मौत। हमारे नबी को भी मौत आई, इसका कोई इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। मौत आई मगर एक आम के लिए, एक लम्हा के लिए, लेकिन तुम मरते हो तो सर जाते हो, तुम मरते हो तो गल जाते हो। लेकिन मिशकात की खुली हुई हदीस है, पैगंबर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलना अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन व युरज़क। नबी भी मरते हैं लेकिन मरने के बाद सरते गलते नहीं है, उनको एक लम्हे के लिए मौत आती है। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए। नबी कल भी जिंदा थे, आज भी मज़ारों में जिंदा है। नबी कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं। जैसे मुस्तफा अपनी जिंदगी में अपने गुलामों को देख रहे थे, पर्दा के बाद भी हम गुलामों को देख रहे हैं, पर्दा के बाद भी हम गुलामों पे करम फरमा रहे हैं। कितनी हदीस अब तक आप सुन चुके हैं? हाथ उठाकर बोलो, आगे पीछे सब बोलो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो कितनी हदीस। मैं इसलिए हाथ उठवा रहा हूं कि गवाह हो जाओ। इन लोगों को तो 2 हदीस याद होगी या 4 होगी, मौलाना के सीने में 900 हदीस है। इनमें गायब पर सिर्फ मेरे सीने में 42 हदीस है। कितनी हदीस जोर से बोलो। अगर 42 बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा, कई दिन लग जाएंगे। अभी 5 हदीसें आपने सुनी, मानने वालों के लिए एक काफी है और ना मानने वाले के लिए लाखों हदीसें बेफायदा। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। बात समझ में नहीं आती है। जब गीदड़ की मौत आती है तो आबादी में भागता है, और जब किसी को जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो वो फिर हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। ऐ सुन्नियों, मोहब्बत करो, जहां रहो अपने नबी की तारीफ करो, अपने इस्लाम की तारीफ करो, ताकि दुनिया समझे कि पैगंबर कितने शान वाले हैं, इनका इस्लाम कितना शान वाला है। तारीफ करने से इस्लाम आगे बढ़ेगा और कमी निकालने से इस्लाम घटेगा। दुनिया कहेगी जब मुसलमान खुद पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है तो हम कलमा क्यों पढ़े। वो पागल है जो पैगंबर के खिलाफ बोलकर इस्लाम की शानो अजमत को घटा रहे हैं। ऐ सुन्नियों, हम लोग घटाते नहीं है बल्कि क्या है, जोर से बोलो, हम लोग बढ़ाते हैं। एक बात और सुनते चलो, जुलूस निकालते हैं तो इनका कलेजा फट जाता है। इधर देखिए, हम लोग जब जुलूस निकालते हैं तो इनका कलेजा फट जाता है। इधर देखिए, नेता के जुलूस में खूब लड्डू खाते हैं, खूब रसगुल्ला खाते हैं, खूब मिठाई खाते हैं, और मुस्तफा का जुलूस जब निकलता है तो चेहरा छछूंदर की तरह बन जाता है। ऐ मुसलमान, बताओ कि जुलूस निकालने से शान बढ़ती है कि शान घटती है? हाथ उठाकर बोले पूरा मजमा। ये बताओ, मौलाना रब्बानी आगे आगे हो और 5 लाख मजमा पीछे पीछे हो और लोग कहे रब्बानी साहब जिंदाबाद, तो बताओ मेरी शान बढ़ेगी कि घटेगी?
तो हजरात वो बेवकूफ है जो कहते हैं कि जुलूस निकालना शिर्क है। जुलूस मत निकालो, वो ऐसी पाबंदी इसलिए लगा रहे हैं कि उनका मकसद यहूदी नसरानी को फरोग देना है, पैगंबर की शानो अजमत को घटाना है। इसलिए दाढ़ी टोपी को देखकर धोखा मत खाओ। जैसे सुन्नी हो सुन्नी बनकर रहो। जोर से बोलो, जैसे सुन्नी हो सुन्नी बनकर रहो। ये मत समझना कि सिर्फ तुम सुन्नी हो हम सुन्नी है, नहीं। 100 बरस पहले का मुसलमान सुन्नी, 200 साल पहले का मुसलमान सुन्नी, 500 साल पहले का मुसलमान सुन्नी, 1000 साल पहले का मुसलमान सुन्नी, 1200 साल पहले का मुसलमान सुन्नी। जितने लोग हैं आज बदल रहे हैं, वरना सबके बाप दादा सुन्नी है। हजरात इधर देखिए, इस भारत में मुसलमान ने 850 बरस तक हुकूमत किया। अब सीने पर हाथ रखकर तुम फैसला करो। मेरी तरफ देखो, भाजपा की हुकूमत 3 साल नहीं चल पाती है। कांग्रेस की हुकूमत के पीछे अन्ना और राम बाबा देव दोनों पीछे पड़े हुए हैं, न जाने कब हुकूमत गिरने लगे। मेरी तरफ देखो, इन लोगों की हुकूमत जल्दी नहीं चल पाती है, लेकिन मुसलमान ने इस भारत में 850 बरस हुकूमत किया। इसका 2 मतलब है। एक मतलब तो यह है कि सबसे अच्छी हुकूमत किया, जुल्म नहीं किया, इसीलिए इतने दिन तक हुकूमत चली। और दूसरा मतलब यह है कि इसलिए हुकूमत इतने दिन चली कि सब सुन्नी थे, सब कलमा पढ़ने वाले, सब दरूद पढ़ने वाले, सब सलाम पढ़ने वाले। उस वक्त कोई वहाबी नहीं था, उस वक्त कोई देवबंदी नहीं था, उस वक्त हमारे मुल्क में कोई शिया नहीं था। सब सुन्नी थे, सब कलमा पढ़ने वाले, सब अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, रसूल से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले, अइम्मा मुज्तहिदीन से मोहब्बत करने वाले। अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तब मुसलमानों में बिगाड़ पैदा हुआ है। ऐ मुसलमान, हमारा बंटवारा अंग्रेज ने किया है, हमको लड़ाया है अंग्रेज ने, हमको तोड़ा है अंग्रेज ने। इसलिए होशियार रहो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। सुन्नी हो सुन्नी बन के रहो। सुन्नी कहते हैं जो अल्लाह से भी मोहब्बत करे, अल्लाह के खिलाफ न बोले, रसूल से भी मोहब्बत करे, रसूल के खिलाफ न बोले, अहले बैत से भी मोहब्बत करे, अहले बैत के खिलाफ न बोले। तमाम सहाबा को अपने सर का ताज, दिल की धड़कन समझे, किसी के खिलाफ न बोले। तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करे, किसी के खिलाफ न बोले। चारों इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करे, इसका नाम सुन्नी है। इसके अलावा जितने हैं सब गुमराह फिरके हैं, सब यहूदी नसरानी के बनाए हुए फिरके हैं, उन्हीं की बनाई हुई जमात है। इसलिए सुन्नियों, मिलकर रहो और एक होकर रहो। हम लोग गलत नहीं है, हमारा अकीदा गलत नहीं है, हमारी जमात गलत नहीं है, हम लोग नए नहीं है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो मेरे गौस का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा। आज जब आला हजरत का नारा लगने लगता है तो लोगों का कलेजा फट जाता है। आला हजरत को पहचानो। आला हजरत, इधर देखो, हम इनसे इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि आला हजरत हमारे गांव के रहने वाले हैं, आला हजरत हमारे शहर के रहने वाले हैं, आला हजरत हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, इसलिए हमारी मोहब्बत नहीं है। आला हजरत से मोहब्बत इसलिए है कि आला हजरत उस जात का नाम है कि पूरी जिंदगी आला हजरत को किसी ने गाली दिया तो आपने माफ कर दिया, आपके बाप दादाओं को गाली दिया तो माफ कर दिया, मगर नबी के गद्दारों को कभी माफ नहीं किया, नबी के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं किया। ऐ सुन्नियों, जो नबी से मोहब्बत करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे, और जो नबी के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अबू बकर सिद्दीक का नाम सुना है? जल्दी बोलो, सुना है? अगर सुन चुके हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
मैं आपसे इतना खुश हूं कि कितनी दुआएं दूं शब कद्र में। यहां मोमिन मुसलमान नबी के दीवाने बैठे हैं, गौर से सुनिए। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा तशरीफ फरमा, क्या है तशरीफ फरमा, इधर देखिए। उनके बेटे ने कहा अब्बा, क्या कहा अब्बा आप मेरे सामने जंगे बद्र में आ गए थे, तलवार के नीचे आ गए थे, जैसे मैंने तलवार उठाई आपका चेहरा देखा तो मैंने फौरन रुख चेंज किया कि आप मेरे अब्बा हुजूर हैं। यह किसने कहा? अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने जब जंगे बद्र के बाद ईमान से मुशर्रफ हुए तब कहा, बोलो तब कहा। तो अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, जलाल आता है, फरमाते नादान बेटा, वो तुम्हारा कुफ्र था कि तूने बाप का ख्याल रखा, मेरा ईमान यह है कि मैं तुमको देख लेता तो तेरी गर्दन मार देता, क्योंकि जो मेरे रसूल का नहीं है वो मेरा नहीं है, जो मेरे रसूल का है वही मेरा है। ऐ मुसलमान, अभी आपने 5 हदीसें सुनी, अब 2 मिनट के लिए रुकिए। कुछ हदीसें ऐसी भी हैं, कुछ हदीसें कि हुजूर से उसके मुताल्लिक सवाल किया गया तो जवाब नहीं दिया। जोर से बोलो, जवाब। तो ये लोग कहता है कि हुजूर को नहीं मालूम था इसलिए जवाब नहीं दिया। ये इनकी गुस्ताखी और बदतमीजी है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हुजूर को मालूम था, लेकिन मेरे हुजूर हर बातों का जवाब नहीं देते, अपनी उम्मत को उन्हीं बातों का जवाब देते जिसमें उम्मत की भलाई होती, लेकिन जिसमें उम्मत की भलाई नहीं होती सरकार उन बातों को जानकर भी छुपा देते, आप बताते नहीं। तो सरकार ने जिन बातों का जवाब नहीं दिया, जिन सवालों का जवाब नहीं दिया, उसमें बेशुमार हिकमतें हैं, मसलहतें हैं। अगर सबको बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा। इतना जान लो कि जिसमें उम्मत की भलाई होती बता देते, और जिसमें उम्मत की भलाई नहीं होती छुपा देते। इतनी बात समझ में आ गई? इन लोगों के सारे एतराज का जवाब मैंने दे दिया। घंटों पेश करूंगा तब भी बात खत्म नहीं होगी। अब वो हदीस सुनिए, इधर देखिए कि सरकार को मालूम है कि किसका बाप कौन है, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। सरकार को यह भी मालूम है, मगर हर बात बताई नहीं जाती। ये भी सुनिए, मां के पेट में लड़का है कि लड़की, हुजूर को यह भी मालूम है, मगर हर बात बताई नहीं जाती। इधर देखो, कौन कहां मरेगा, हुजूर को यह भी मालूम है, मगर हर बात बताई नहीं जाती। ये बताओ कि किसका बाप कौन है। अगर हुजूर बता देते तो दुनिया का निजाम बिगड़ता कि नहीं? अरे बोलो, बिगड़ता कि नहीं? बिगड़ता ना। तो ये बात बताने की है, नहीं बताने की है। मेरी तरफ देखो। लेकिन किसी ने जिद किया तो बता दिया। जोर से बोलो, किसी ने, जोर से बोलो, किसी ने। एक हुजूर का बहुत बड़ा दुश्मन था, उसका नाम वलीद बिन मुगीरा है। क्या नाम है? हुजूर से कहने लगा, मोहम्मद, मैंने सुना है कि आप अल्लाह के पैगंबर हो, मैंने सुना है कि आप अल्लाह के नबी हो। अगर आप अल्लाह के नबी हो तो मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बताओ जो मेरे राज की हो, जिसको मैं जानता हूं और कोई। तो हुजूर ने मना किया। क्या किया? जोर से बोलो। मेरे सरकार ने मना फरमाया कि ऐसी बात मत पूछो, ऐसी बातें मत पूछो कि जिससे तुम्हारी जिल्लत हो, रुसवाई हो। वो नहीं माना। कहा, बताइए तब मैं आपको नबी मानूंगा। जब मेरे सरकार ने देखा कि नहीं मान रहा है तो बताना शुरू किया कि तुम्हारे अंदर फला ऐब, तुम्हारे अंदर फला ऐब, तुम्हारे अंदर फला ऐब। बताते 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 आखिरी में कहा कि तू हरामी भी है। क्या कहा? अब
अब वो आदमी सर को पकड़कर सोचने लगा, या अल्लाह, मोहम्मद ने 10 बातें बताई हैं, 9 तो बिल्कुल कन्फर्म है, 9 तो बिल्कुल, लेकिन एक आखिरी में जो कहा कि तू हरामी है, जब 9 सही है तो लगता है ये भी सही है। गया, इधर देखिए, गुस्से में गया मां के पास तलवार लेकर, कहा मां, मोहम्मद ने मेरे बारे में 10 बातें बताई, 10 ऐबों को बयान किया, 9 तो बिल्कुल सही है जिसको मैं जानता हूं, लेकिन आखिरी में कहा कि तू हरामी है। जब 9 सही है तो लगता है ये भी सही है, सही बता वरना इस तलवार से तेरी गर्दन मार दूंगा। ये किसने कहा? बेटे ने मां से कहा। तो अब मां का जवाब सुनिए, हाथ उठाकर बोलिए सब सुभान अल्लाह। मां जवाब देती है, गौर से सुनिए, मां जवाब देती है, ऐ बेटा, क्या कहा? जोर से बोलो, ऐ बेटा, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के नबी है। ऐ बेटा, मोहम्मद से उलझा ना करो, मोहम्मद ने जो बताया है सब सही है। मां ने कहा, बेटा, मेरी मजबूरी थी, तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था कि कोई औलाद पैदा हो सके, तुम्हारे बाप के पास लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी थी, मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक गैर बन जाए। ऐ बेटा, मेरे दिल में ख्याल आया कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कहीं गैर न बन जाए। मेरे पास एक चरवाहा रहता था, उसी से मैंने मुलाकात किया, जिससे तुम हो, मोहम्मद ने जो बताया है सब सही है। तो हजरात, हर बात बताई नहीं जाती, वो पागल है जो पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं। इधर देखिए, मां के पेट में लड़का है कि लड़की, ये बात भी बताने की नहीं है, लेकिन जब मौका और महल आया है तो हुजूर ने इसको भी क्लियर कर दिया है। अगर इस हदीस को सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाब मनाकिब अहले बैत सफा नंबर 572, अन उम्मिल फज़ल रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्नी रअयतु हुल्मन मुनकरल लैला, क़ाल वमा हुवा, क़ालत इन्नहु शदीद, क़ाल वमा हुवा, क़ालत इन्नी रअयतु कअन्ना क़िततन मिन जसदिका कुतियत व बुसियत फी हिजरी, क़ाल रअयतु खैरन तलिदु फातिमा इंशाअल्लाह तआला गुलाम यकूनु फी हिजरी का। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरते उम्मुल फजल जो हुजूर की चची है, कौन है? जल्दी बोलो, हुजूर की। ऐ बच्चे बात मत करो, बेटा बात मत करो, गौर से सुनो। मौलाना की तकरीर 15 मिनट और सुनो, इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, सरकार की चची कहती है कि एक दफा मैं सरकार की बारगाह में घबराती हुई हाजिर हुई। ये कौन कहती है? उम्मुल फजल। सरकार ने पूछा, मां हुआ? मां हुआ? चची क्या हुआ, इतनी क्यों घबरा रही हो? तो सरकार की चची ने क्या कहा, जुमले पे गौर करना। सरकार की चची कहती है, या रसूल अल्लाह, आज मैंने ख्वाब में देखा। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, आज मैंने ख्वाब में देखा कि गैब से एक चाकू निकला, गैब से एक चाकू निकला, आपके बदन से गोश्त काटा और गोश्त काट कर मेरी गोद में डाल दिया, मेरी गोद में रख दिया। जब से ये ख्वाब देखा है मेरा बदन कांप रहा है, मैं थरथरा रही हूं, तरह तरह का ख्याल पैदा हो रहा है कि कहीं आप पर मुसीबत तो नहीं आने वाली है। इतना सुनना था,
सरकार मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे। सरकार फरमाते हैं राइते खैरन कले दो फातिमा इंशाअल्लाह ताला गुलामन यकूनो फी हिजरे का। सरकार फरमाते हैं ऐ चची जान घबराइए नहीं, आपने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, बड़ा सुनहरा ख्वाब देखा है, बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है। ऐ चची जान मेरी बेटी फातिमा को लड़का पैदा होगा जो आपकी गोद में दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए हुजूर ने क्या कहा? चची घबराइए नहीं, मेरी बेटी फातिमा को लड़का पैदा होगा जो आपकी गोद में दिया जाएगा। इधर देखिए। अच्छा हुजूर ने कितने दिन पहले कहा? जल्दी बोलो। 5 महीना पहले। कितने दिन पहले से उसे बोलो? अब 5 महीना के बाद इधर देखो, कोई भी डॉक्टर 3 महीना से पहले ये नहीं बता सकता कि लड़का है कि लड़की है। जोर से बोलो। कोई भी डॉक्टर 3 महीना से पहले ये नहीं बता सकता लड़का है कि लड़की है। इतना कह सकता है कि पेट में हमल है, मगर ये नहीं कह सकता लड़का है कि लड़की है। लेकिन मेरे पैगंबर को देखो, अभी हुसैन मां के शिकम में आए हैं कि मेरे सरकार फरमा रहे हैं ऐ चची जान घबराइए नहीं, मेरी बेटी फातिमा को लड़का पैदा होगा जो आपकी गोद में दिया जाएगा। ये तो एक हदीस है, मगर दूसरी हदीस इस तरह है ऐ चची जान घबराइए नहीं, मेरी बेटी फातिमा को लड़का पैदा होगा जो आपकी गोद में दिया जाएगा। अल्लाह ने उनका नाम हुसैन रख दिया है। कितनी हदीस सुन चुके? हाथ उठाकर बोलिए। पूरा मजमा का हाथ उठना चाहिए तभी मैं समझूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको आपके बाल बच्चों को मरते दम तक ईमान पे कायम व दायम रखे। अभी आपने 6 हदीस सुनी। इधर देखिए, अब आखिरी सुनाना चाहता हूं। वैसे तो बहुत है, सुनाने लगूं तो घंटों लग जाएगा। मौलाना को चक्कर आ रहा था, लेकिन इस चक्कर में भी मैं बोलता चला गया और सारा चक्कर मेरा खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी मेरा चक्कर तो खत्म हो गया, लेकिन हदीस सुनकर कुछ लोग चक्कर लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि कल क्या जवाब देंगे? मौलाना का चक्कर तो खत्म हो गया, अब सारा चक्कर मुझ पर सवार हो गया। अभी आपने 6 हदीस सुन चुके। अब आखिरी ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी। सारी हदीसें अगर तुमको याद न हो सकी, आखिरी भी अगर याद हो गई तो उनके बाप भी इस हदीस का जवाब नहीं दे सकते। आखिरी हदीस सुनिए, बड़ी शानदार हदीस। देखने में तो छोटी है, लेकिन सारी दुनिया इसमें मौजूद है। अगर सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल मसाजिद सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रअयतु रब्बी अज़्ज़ा वजल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़हु बैन कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैन सदियैया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। जोर से बोल दो सुभान
अल्लाह। हमारे भाई के माइक ने मेरे सीना को खींच कर कुचल दिया, वरना मौलाना रब्बानी पीछे नहीं हटते हैं, ये मुझको पीछे हटा देता है। लेकिन फिर भी आप तक मैं पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, इजाजत है? हजरत अब्दुर रहमान कहते हैं, ये हदीस कहां है? मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 69-70। क्या मतलब? कुछ इबारतें 69 सफा पे है, जोर से बोलो, और कुछ इबारतें सफा नंबर 70 पर है। एक ही हदीस है मगर कुछ इधर है कुछ इस सफा पर है। मेरी तरफ देखो, अब्दुर रहमान कहते हैं कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया, कहां गया? सरकार फरमाते कि जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह को बिला हिजाब देखने लगा, अल्लाह को बिला पर्दा देखने लगा, साफ साफ देखने लगा। इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शाने पर रख दिया, मेरे कांधे पर रख दिया, मेरे मोढे पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शाने पर रखा, मेरे मोढे पर रखा, मेरे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, जो कुछ सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। मेरी तरफ देखो, सरकार ने क्या फरमाया, जोर से बोलो। जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, जोर से बोलो, अल्लाह ने अपना, अल्लाह हाथ से पाक है तो क्या कहा जाएगा, जोर से बोलो, दस्ते कुदरत। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा और एक हदीस में इस तरह है, कहा महबूब और करीब आ जाओ, महबूब और पास आ जाओ। सरकार फरमाते मैं बढ़ता चला गया, मेरा सीना रोशन होता चला गया। दूसरी हदीस सुनिए, सरकार कहते हैं कि जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शाने पर रखा, मेरे मोढे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, जो कुछ सातों जमीन में है, सबको मैंने जान भी लिया और सबको पहचान भी लिया। मैंने 7 हदीसे सफा पेज हवाला के साथ आपको सुना दिया। अब भी अगर आप उनकी बात मानेंगे तो यही समझूंगा किस्मत खराब है। जल्दी बोलो, किस्मत खराब है। वरना इधर देखो, मोमिन अपने नबी की कमी नहीं निकालता, नबी की तारीफ करता है। जहां रहो नबी का खुतबा पढ़ो, नबी की नात पढ़ो, नबी पर दरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की हमदो सना बयान करो, इस्लाम की तारीफ करो, इस्लाम की खूबियां बयान करो, क्योंकि तारीफ करने से इस्लाम बढ़ेगा और कमी निकालने से इस्लाम घटेगा। मेरी तरफ देखो, सबको देखना आसान है मगर रब को देखना आसान नहीं है। इधर देखिए, हजरत आदम से लोगों ने पूछा क्या आपने अल्लाह को देखा है, तो हजरत आदम ने कहा देखा नहीं है, सुना है। हजरत मूसा से लोगों ने पूछा क्या आपने अल्लाह को देखा है, तो मूसा ने कहा देखने की तमन्ना की, बेहोश हो गया, देख नहीं सका।
حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں سنا ہے، فرشتوں نے بتایا ہے۔ لیکن سنیے جب میرے پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا تو جلال بھی آئے، فرمایا او میری قوم سن لے، وہ پچھلے انبیاء تھے جنہوں نے سنا تھا، لیکن میں نے اپنے رب کو 33 مرتبہ خواب میں دیکھا اور 1 مرتبہ عرش اعظم پر جا کر دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، حالت بیداری میں دیکھا ہے۔ حضرات مصطفیٰ نے خواب میں بھی اللہ کو دیکھا اور جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بھی اللہ کو دیکھا۔ فیصلہ سپریم کورٹ کا اب یہیں پر کر دیا جائے کہ جس نگاہ سے رب نہ چھپے تو سب کیسے چھپے۔ اتنا جان لو کہ جس نے رب کو دیکھ لیا، زور سے بولو، اس نے سب کو دیکھ لیا۔ جس نے رب کو دیکھ لیا اس نے سب کو دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ حضرت فرما رہے کہ شب معراج کی حدیث سنا دیجئے۔ یہ دیکھیے سبحان اللہ مت کہیے یہاں پر میں بے موقع بے محل گفتگو نہیں کرتا، میں جہاں سے شروع کرتا ہوں وہیں ختم کرتا ہوں۔ آپ کو امریکہ لندن برطانیہ نہیں گھماتا ہوں، آپ کو مصطفیٰ کی وادیوں میں گھماتا ہوں، مصطفیٰ کے مدینے کے گلشن میں گھماتا ہوں۔ حضرات جتنی حدیثیں میں نے سنا دی اگر آپ نے محفوظ کر لیا تو یہ میرا چیلنج ہے، کوئی بدعقیدہ آپ کو بہکا نہیں سکتا۔ مولانا ربانی آپ کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ 5 سال سے لوگوں نے تاریخ مانگی لیکن فرصت نہیں تھی کہ میں آپ تک پہنچتا، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ حیدرآباد کے لیے اپنی تاریخ نکالوں۔ انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے۔ اور یہ میرا سن لیجئے، کوئی بدعقیدہ اگر کبھی بھی آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو جھٹ سے میرا موبائل نمبر لیجئے اور آپ کہیے کہ مجھ سے مت بات کرو، ہمارے مولانا سے بات کرو، ہمارے عالموں سے بات کرو، اور آپ ان کے چکر میں مت پڑو، جیسے سنی ہو سنی بن کر رہو۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے یہ جوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ فرما رہے کہ لیلۃ القدر کی تھوڑی فضیلت دیکھیے، پہلے ہی سب کیوں نہیں بتا دیا آپ ہم سے؟ ہم جان رہے اگر آپ موضوع نہیں دیے ہوتے تو میں لیلۃ القدر ہی پہ بولتا۔ اگر آپ نے مجھ کو الہ آباد فون کیا کہ حضرات آپ کو علم غیب پر بولنا ہے، اسی لیے میں نے یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر لیلۃ القدر پہ کہے ہوتے تو یقینی بات ہے مولانا لیلۃ القدر پہ بولتے، لیکن کہہ دیا ہے تو 2 منٹ قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو فضیلت سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ جانتے ہو شب قدر کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور صرف عام فرشتے نہیں، اللہ کے جبریل بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں پر سلامتی کی دعائیں بھیجتے ہیں۔ اور کب تک سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں؟ مطلع الفجر، جب تک کہ صبح نہ ہو جائے سارے فرشتے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ اے مسلمان، یہ بہت مقدس رات ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ آج رات میں جتنا جی چاہے بولو، اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ، توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اور موقع مل جائے تو ماں باپ کی قبر پر جا کر کے قرآن پڑھ ڈالو تاکہ ان کی روحیں بھی آپ سے خوش ہو جائے، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے اور آپ ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مولانا پھر کبھی حاضر ہوئے تو جم کے خطاب ہوگا۔ اگر مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کے دل کو توڑنے نہیں آیا تھا،
مصطفیٰ سے جوڑنے آیا تھا، مدینے والے سے جوڑنے آیا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔